Hi students, how are you all? I hope you are good. Welcome to our online classes. So students, before starting this video, it is a request that you should watch each and every video till the end. So it's just not about English subject, कोई भी सब्जेक्ट हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो एंड तक देखो, बिकॉज बाय seeing this video or listening this video you will get lots of knowledge and might be some good lesson or good you can say a theme you can get to know about of each and every subject. So in this video we'll be starting with chapter number 7, adjective. It is very easy chapter. So what is adjectives? Adjective, first of all, it is one of the parts of speech. Now you can call adjective as describing words. आप adjective को describing words कह सकते हो. So what is describing means? Describing means बताना. तो कुछ ऐसे words जो किसी चीज़ means noun या pronoun के बारे में बताएंगे, उन words को adjectives कहेंगे और you can say describing word. They tell us about noun और you can say pronoun. So कुछ ऐसे words जो कि describe करते हैं noun and pronoun को, that are called adjective. And adjective, here it is very important, you can make a star here. An adjective usually come before a noun. In some sentences it is also written after noun. तो usually means काफ़ी बार आप जो adjective हो वो आप देखोगे noun से पहले, before a noun. But in also some sentences you can see adjective after the noun, but in most cases you will see before the noun. For example, here you can see that is a fat man. So here what is the describing word? Can you guess? Fat means we are talking about a man who is fat. Okay, तो man को कैसे describe करा कि वो fat है, and fat is adjective, man is noun. तो here adjective is coming before the noun. In second example, let's see, that man is fat. So here now man is noun, fat is adjective. So now adjective is coming after the noun. So let's begin with the kinds of adjective. So there are 8 kinds of adjective. Let's start with the number 1 kind of adjective, that is adjective of quality. The adjective of quality adds a quality to a noun or a pronoun. मीन्स क्वालिटी, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर नाउन एंड प्रोनाउन, जस्ट नॉट अबाउट पर्सन, माइट बी ऑफ अ थिंग, माइट बी ऑफ अ एनी एनिमल. सो हेयर लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1. एन एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल. इफ आई से एन एलिफेंट इज़ अ एनिमल, दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट, बट आई एम टेलिंग कि एलिफेंट एक एनिमल है, बट आई एम एडिंग क्वालिटी लार्ज टू इट. तो क्या बना सेंटेंस? एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल. सो नाउ दिस सेंटेंस इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एलिफेंट. अर्लियर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एन एलिफेंट इज अ एनिमल, तो ये सेंटेंस जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है. बट अगर अपन इसमें एक क्वालिटी ऐड करेंगे लार्ज, when we are reading this sentence we are easily getting to know that the elephant is large animal. Now let's take second example. The girl has golden hair. Now जो क्वालिटी बता रहे हैं उस गर्ल की या उसकी हेयर्स की, जो क्वालिटी बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि उसकी हेयर्स गोल्डन है. ईजिली वी कैन से कि दैट गर्ल हैज़ हेयर. दैट इफ आई एम एडिंग दैट गर्ल हैज़ शॉर्ट हेयर्स, that girl has long hairs, that girl have brown hairs. So these are the qualities. If I say this girl has hairs, तो ये तो just information है कि उसके पास
hairs हैं, but if I am adding some color to it, might be a length to it, that is quality. Now here in green, it is very important these are the rules. By easily learning these rule or understanding these rule, you can easily find out what is adjective of quality. That means अगर if I am giving you number of sentences and I am asking you to find adjective, तो ये वाला जो पिंक में है here, you can ask this to a noun. We can and know an adjective of quality by asking a question to the sentence of what kind. तो मीन्स किस काइंड का है, मीन्स किस तरीके का है. अगर अपन सेंटेंस से पूछेंगे कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल था एन एलिफेंट, तो एलिफेंट किस तरह का है, तो एलिफेंट लार्ज है. वो गर्ल कैसी, उसके बाल कैसे हैं, उसके बाल गोल्डन है. ऑफ व्हाट काइंड, यू विल आस्क दिस क्वेश्चन टू अ सेंटेंस एंड जो भी उसका आंसर आएगा कि किस तरीके का है, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज किस तरीके का है, लार्ज है. किस तरीके के हेयर्स हैं, गोल्डन है. तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ सेकेंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मीन्स क्वांटिटी मीन्स उसमें इफ आई एम टेलिंग यू नंबर्स, ओके, इफ आई हैव 5 पेन, आई हैव 100 ऑफ पेपर्स, तो ये मैं उनकी क्वांटिटी बता रही हूँ. सो लेट्स रीड फ्रॉम द बुक. The adjectives of quantity tells the quantity or amount of something. Means might be noun, again might be pronoun. तो nouns में क्या हो सकते हैं, might be people, might be animal, might be things. तो उनकी जो भी amount या quantity बताए वो क्या होंगे, adjective of quantity. So before reading example, we'll be again reading this green here, green column, कि now you have to ask how much to the sentence. We can know an adjective of quantity by asking a question to the sentence how much. तो how much we'll be seeing. अब अपन डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करेंगे, let's see first example. She has rice. If I say how much rice, तो आंसर क्या आएगा, she has some. Here it is not mentioned in pink in your book, so some is the adjective of quantity or you can say one of the adjective. कैसे पता चला some, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन पुट अप करा how much rice, आंसर is she has some rice. Now let's take the second example. She did not eat any food. So if I ask how much food did she eat, so answer is she did not eat any food. So any is the adjective of quantity. Any means उसने ज़रा सा भी या कुछ भी खाना नहीं खाया. So now let's come to the third kind of adjective, that is demonstrative adjective. Demonstrative words, again we are listening from so many chapter. Demonstrative means to demonstrate, to point out something. So let's read from the book. Demonstrative adjective points out which person, thing or place are meant. For example, this girl is very polite. We don't like these things. So here also this, these, that, those. Here you can easily write in a blank space in your book this, these, that, those. ये क्या है, demonstrative adjective. Now let's come to the fourth kind of adjective, that is adjective of number. The adjective of number tell us the definite or indefinite number of person or things. For example, here are 50 rupees for you. I have many books. So now if we see number
एनी नंबर, ये तो ग्रीन में तो विल बी रीडिंग कि इसमें अपन पूछेंगे हाउ मैनी, अपन ने क्वांटिटी में पूछा था हाउ मच, एंड हेयर वी आर आस्किंग द क्वेश्चन हाउ मैनी, कितने। तो इफ़ वी सी नंबर्स कि 50, 40, 100, लैक्स, तो ये क्या आएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑल्सो टेल्स अबाउट इनडेफिनेट, मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपन नंबर्स में नहीं बता सकते, या फिर अगर मैं कहूँगी मेरे पास 10 बुक्स हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही कि मेरे पास 10 बुक्स हैं, तो मैं उसको अनदर वे में कैसे कह सकती हूँ, बाय यूजिंग एडजेक्टिव टू मेक, वाई वी यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच और वाई वी यूज एडजेक्टिव टू मेक सेंटेंस मोर अप्रोप्रिएट, कि और ठीक हो सके। 10 बुक जो है मेरे पास वो भी करेक्ट सेंटेंस है, उसकी जगह मैं और अगर अच्छी एक प्रॉपर सेंटेंस बनाऊंगी तो आई कैन यूज आई हैव मैनी बुक्स, जैसा कि आपका सेकंड एग्जाम्पल है आई हैव मैनी बुक्स। नाउ इन फर्स्ट एग्जाम्पल देर इज अ नंबर गिवन of rupees, here are 50 rupees, how many rupees, 50 rupees. Next, how many books, many books, so here I can also tell the number, I have 100 of books, 50 books, but in order to replace with the number I can use many, some, more. Okay, so at the end I'll be sharing you more example with this, with the PDF. Okay, while I'll be giving you the exercise PDF, I'll be giving example of more adjectives. So let's take fifth kind of adjective, that is interrogative adjective. The words that are used with noun to ask question are called interrogative adjective. Listen it very carefully, that the words that are used with noun, nouns के साथ कुछ words ऐसे add होते हैं that will ask question about something, that will call interrogative adjective. That is, which bag do you want, that is we are, bag क्या था noun, noun के साथ अपन ने क्या adjective add करा which, and adjective क्या है it is coming before the noun। तो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो कि नाउन से पहले जो आते हैं वर्ड्स वो एडजेक्टिव होंगे और वो कौन सी कैटेगरी के अंदर होंगे। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाय रीडिंग दीज एग्जाम्पल, जहाँ पे आप विच देखोगे या क्वेश्चन पूछोगे व्हाट, हाउ, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर। सो लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल, हुज कैप इज ही वेयरिंग। सो अगेन अ क्वेश्चन। Now let's come to the sixth kind of adjective, that is possessive adjective. So again, possessive means which shows ownership or which tells that something is belongs to someone. So let's read from the book. Possessive adjective are used to tell possession, you can say ownership of something or some person. For example, माई स्कूटर नीड्स रिपेयर। तो जो भी वर्ड्स हैं माई, ओके, इन प्रीवियस चैप्टर यू कैन ईजली राइट डाउन कि कौन से वर्ड्स हैं जो कि पोजेशन शो करते हैं। ओके, दैट एक्टिविटी आई लीव्स ऑन यू। ओके, ये एक्टिविटी आपकी है कि आप पीछे के चैप्टर्स पे जाओगे, जितने भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि पोजेशन शो करते हैं, आप यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में स्पेस है, इवन ऊपर बुक के स्पेस है, यू कैन राइट कैसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि पोजेशन शो करते। तो हेयर इट इज़ रिटन माई स्कूटर नीड्स रिपेयर। तो एक अगर मैं माई हटा दूँ और मैं कहूँ स्कूटर नीड्स रिपेयर, ये भी करेक्ट एग्जाम्पल है, बट मैं उसमें बता रही हूँ, पोजेशन बता रही हूँ कि माई स्कूटर, मेरे स्कूटर को रिपेयर की ज़रूरत है। नाउ second is this tree is losing its leaf. So its क्या है here, again it is not mentioned here in pink, you can underline its. okay, तो it क्या है, possession show कर रहा है।
किसका? ट्री का, कि ये वाला ट्री अपनी लीव्स शेड कर रहा है. So let's take seventh kind of adjective, that is distributive adjective. Distributive adjective shows the person or a thing that from a group or taken as one at a time. So here again, if we are talking about a group and if we want to take a particular person out of that group, जो भी वर्ड्स जो ऐसे शो करेंगे कि दैट वी आर टेकिंग एवरीबडी, एंड इफ वी आर पिकिंग एनी वन और एनी ईच ऑफ द पर्सन और एनी थिंग, दैट विल शो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, वी ड्रिंक मिल्क एवरी डे. सेकेंड, ईच मैन हैज़ हिज ओन ओपिनियन. सो हेयर वी सी एवरी डे तो मीन्स इट वॉज अ ग्रुप ऑफ डेज, तो उसको अपन ने क्या कर दिया? एवरी डे. आई एम नॉट सेइंग वी ड्रिंक मिल्क ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे. तो मैं उन सेंटेंस को बड़ा करने की जगह एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस बनाने के लिए आई हैव यूज द एडजेक्टिव एवरी डे. इन सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव यूज्ड ईच. ईच मैन हैज़ हिज ओन ओपिनियन. अब मैं यहाँ पे ये भी कह सकती थी राम हैज़ हिज ओन ओपिनियन, शंकर हैज़ हिज ओन ओपिनियन, जॉन हैज़ हिज ओन ओपिनियन. तो रिपीटेशन ना हो तो मैं ईजिली, अगर इफ़ आई एम टेलिंग समवन तो आई कैन ईजिली से ईच मीन्स हर किसी मैन की उसकी खुद की ओपिनियन होती है. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज एम्फेथेटिक एडजेक्टिव. These adjectives are used to emphasize our opinion about something are called emphatic adjective. Means if we are putting stress or if we want someone to just concentrate on what we are saying or we are giving stress to some important thing. अगर मुझे कुछ important चीज़ें बतानी है तो मैं उसको काफ़ी बार रिपीट करूँगी या मैं उसको कुछ ऐसे वर्ड्स से यूज़ करूँगी जिससे पता चले कि आई एम एम्फसाइजिंग ऑन माई ओपिनियन. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, वन शुड डू वंस ओन ड्यूटी. ओके, मीन्स खुद को अपन सिंपल सेंटेंस लें कि अपन को ड्यूटी करनी चाहिए, बट मैं क्या स्ट्रेस दे रही हूँ? अपन को खुद को ड्यूटी करनी चाहिए. लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव अ वेरी बैड डॉग. सो आई एम अगेन एम्फसाइजिंग, बैड तो बता दिया बट वेरी बैड मीन्स आई वॉन्ट यू टू understand my opinion or I want to giving stress on my opinion that dog is not just bad, it is very bad. So in last here you can write down in your book, an adjective can be placed after verb to is. verb क्या मैंने यूज करा है? to is. अलग अलग लिखो, टी ओ एंड आई एस इज. कैसे? एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन, दिस पैलेस इज ह्यूज. दिस पैलेस इज ह्यूज. तो इज क्या है? वर्ब. तो वर्ब आपने देखा था नाउन के बिफोर एंड आफ्टर यूजुअली क्या होता है? बिफोर आता है एडजेक्टिव, समटाइम्स आफ्टर द नाउन और यू प्रोनाउन, बट इट ऑल्सो समटाइम्स जो एडजेक्टिव हैं वो वर्ब के बाद में आते हैं, आफ्टर द वर्ब. कैसे? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, दिस पैलेस इज ह्यूज. तो इज क्या था? वर्ब एंड ह्यूज इज एडजेक्टिव. इसके जस्ट बाद में ह्यूज आया, दैट इज एडजेक्टिव. नाउ हियर दिस इज अ टेबल दैट showing us adjective are formed from nouns, verbs and sometimes from adjectives also. कि जो अपन को जितने भी adjectives हैं वो अपन noun की help से बना सकते हैं, verb की help से बना सकते हैं, sometimes जो adjective वो हैं adjective itself modifies it to another adjective. And even in some sentences you will find not just one adjective, you can find two adjectives. So if I say I have a huge
ब्लैक कलर कार, तो कार को मैं कौन सा पूछ रही हूँ, व्हाट काइंड ऑफ कार, ह्यूज एंड ब्लैक। तो मैंने उनको दो क्वालिटीज़ बताई। तो समटाइम्स यू विल सी मोर देन वन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में हमेशा एक ही एडजेक्टिव नहीं होगा, समटाइम्स मोर देन वन। सो लेट्स टेक some example. You can easily, it is in the video or I can share it with you as a PDF. You can read all the adjectives कि कैसे फॉर्म होते हैं। फर्स्ट एडवेंचर, उसका अगर मुझे कोई एडजेक्टिव बनाना है तो आई विल से एडवेंचरस, मीन्स अगर इफ़ समवन इज डूइंग एडवेंचर तो मैं उस पर्सन को कैसे बोलूँगी, दैट दिस पर्सन इज वेरी एडवेंचरस। विजडम, वाइज, कि किसी की विजडम अच्छी है तो आई विल से ही एंड शी इज वाइज मैन और वाइज वुमेन। नाउ लेट्स कम टू द वर्ब कॉलम, कि वर्ब से कैसे बनते हैं एडजेक्टिव। टू एक्ट मीन्स अपन कुछ कर रहे हैं तो ये तो वर्ब हुआ, बट इफ़ आई सेइंग कि एडजेक्टिव कैसे बनेंगे, एक्टिव। तो इफ़ आई से शी इज़ एक्टिंग इन ड्रामा, शी इज़ ऑल्सो एक्ट इन स्पोर्ट्स, तो इन शॉर्ट मैं क्या कहूँगी, शी इज़ अ एक्टिव गर्ल। नाउ हेयर वी इफ़ वी टेक सेकेंड टू अप्लाई, अप्लाई कहीं पे भी अगर आ रहा है या कोई पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा है तो आई विल से, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस या रूल्स, वी यूज़ अप्लाई फॉर बेसिकली फॉर रूल्स, कि दिस इज़ एप्लीकेबल, कि अगर रूल्स लिखें तो दिस इज़ एप्लीकेबल। नाउ लास्ट कॉलम एडजेक्टिव्स, की एडजेक्टिव से ही से क्या है, ऑलरेडी एक क्वालिटी है। इफ़ विल टेकिंग वन हेयर, तो क्या था ये, एडजेक्टिव ऑफ नंबर वन। पर अगर मेरे को वन को एक डिफरेंट एडजेक्टिव में, वन इज़ करेक्ट एडजेक्टिव, अगर मैं और उसको एक अच्छी लैंग्वेज में लिखना चाह रही हूँ तो आई कैन यूज़ सिंगल। आई हैव वन पेंसिल, आई हैव सिंगल पेंसिल और सिंगल पेन। सो हेयर वी एंड दिस चैप्टर। I hope you understood well. Thank you so much for listening, and do read all this column or this chart. Thank you so much.